محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کی حدیث مبارکہ سے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک جنازہ میں شریک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، اس امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی اس سے جدا ہوتے ہیں تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گرز ہوتا ہے. وہ اس میت کو بٹھا کر پوچھتا ہے، تم اس آدمی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ اگر وہ مومن ہو تو وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. یہ سن کر فرشتہ اس سے کہتا ہے، تم نے سچ کہا. پھر اس میت کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور فرشتہ اسے کہتا ہے، اگر تم نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہوتا تو تمہارا یہ ٹھکانہ ہوتا، مگر اب تم مومن ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. اتنے میں اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب وہ میت ادھر کو اٹھنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس سے کہتا ہے، ادھر ہی سکون اختیار کرو. پھر اس کے لیے اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے اور اگر میت کافر یا منافق ہو تو فرشتہ اس سے پوچھتا ہے، تو اس ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں تو کچھ نہیں جانتا، البتہ لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنتا تھا. فرشتہ کہتا ہے، تو نے نہ سمجھا، نہ پڑھا، نہ ہی ہدایت پائی. اس کے بعد اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور وہ فرشتہ اس سے کہتا ہے، اگر تو اپنے رب پر ایمان لاتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، مگر تو نے چونکہ اپنے رب کے ساتھ کفر کیا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اس کے متبادل ایک اور ٹھکانہ تیار کیا ہے. اتنے میں اس کے لیے جہنم کی طرف سے دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر وہ فرشتہ اس کو گرز کی ایک زبردست ضرب لگاتا ہے جس کی آواز کو جن و انس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق سنتی ہے. یہ حدیث سن کر کچھ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب فرشتہ ہاتھ میں گرز لیے کر کسی آدمی کے ساتھ کھڑا ہوگا تو وہ تو حواس باختہ ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً یہ آیت پڑھی، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھ. آغاز سے قبل نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. ایم ایل سی انتخابات کے پیش نظر پی اوز اینڈ اے پی اوز کے لیے تربیتی کلاسز کا انعقاد. ضلع کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو جاری کی ہدایتیں. اسلام مسلمانوں کی سب سے بڑی شان جس پر ہر مسلمان کو فخر ہونا چاہیے. سالانہ جلسے سے مولانا عبدالقوی کا ایمان کو گرما دینے والا خطاب. سعودی حکومت نے حج ویزا میں جاری کی تبدیلی. ہندوستان سمیت دیگر 14 ممالک پر ہوگا اثر. اب خبریں تفصیل سے. ایم ایل سی انتخابات کے پیش نظر 27 تاریخ کو منعقد ہونے والے پولنگ کے عمل کے لیے نیو امبیڈکر بھون میں اے پی اوز اور پی اوز کے لیے تربیتی کلاسز کا انعقاد. اس موقع پر ضلع کلکٹر نے عہدیداران کو دی ہدایت. ضلع الیکشن افسر کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنتو نے تجویز کی کہ نظام آباد، کریم نگر، میدک اور عادل آباد اضلاع پر مشتمل قانون ساز کونسل کے انتخابات کے سلسلے میں اس ماہ کی 27 تاریخ کو ہونے والی پولنگ کے عمل کو پوری طرح سے سمجھ گیا جائے. اگر کوئی شک ہے تو تربیتی کلاسوں میں ماسٹر ٹرینر سے پوچھیں. نظام آباد ریونیو ڈویژن کے دائرہ اختیار کے تحت
प्रेसाइडिंग अफसरान, असिस्टेंट प्रेसाइडिंग अफसरान और ओपीओ के लिए हफ्ते को जिला मरकज के न्यू अम्बेडकर भवन में तरबियती क्लासेस का पहला दौर मुनाकिद हुआ। इस मौके पर कलेक्टर ने पीओस और एपीओस को अहम हिदायत दी। उन्होंने कहा कि तरबियती क्लासेस का इनेकाद बेहतर तरीके से किया जाए और इंतखाबी ड्यूटी से मुतालिक तमाम पहलुओं से आगाही पैदा की जाए और मशवरा दिया कि तरबियती क्लासों को हल्के में लिए बगैर इलेक्शन कमीशन के रहनुमा उसूलों और खवायद से मुतालिक हर एक पहलू को सीखें, क्योंकि ये अब तक की गई इंतखाबी ड्यूटियों की तरह बुनियादी तौर पर असम्बली और पार्लियामेंट के इंतखाबात के मुकाबले में कानून साज काउंसिल के इंतखाबात की पोलिंग का अमल कुछ मुख्तलिफ है। MLC पोलिंग के अमल में जो बैलेट के तरीक़ेकार से किया जाता है, चूँकि वोटिंग के अमल में थोड़ा ज़्यादा वक्त लग सकता है, इसलिए सब्र, तहम्मुल और मौसर तरीके से अमल को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। 27 तारीख को पोलिंग का वक्त सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मुनाकिद होगा और वो मुकर्ररा तारीख के अंदर पोलिंग सेंटर के अंदर कतार में लगे पैड की तरतीब में टोकन नंबर फ्राहम करके वोट दें। प्रेसाइडिंग अफसरान को मशवरा दिया कि वो अपनी टीम के साथ इस माह की 26 तारीख को पोलिंग से एक रोज पहले सुबह 8 बजे तकसीम मराकिज पर पहुंचे। कलेक्टर ने कहा कि तकसीम मराकिज पर फ्राहम करदा पोलिंग मटेरियल और बैलेट बॉक्स को अच्छी तरह चेक किया जाए और ये भी देखा जाए कि तमाम मवाद चेक लिस्ट के मुताबिक मख्तस किया गया या नहीं। पोलिंग मवाद का मुआयना करने के बाद उन्हें अथॉरिटी की जानिब से फ्राहम करदा गाड़ी में अपनी टीम के साथ नामजद पोलिंग मराकिज तक पहुंचने का मशवरा दिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर सख्ती से अमल करते हुए पोलिंग का अमल इंतहाई जिम्मेदारी और एहतियात के साथ अंजाम दिया जाए। अपनी जिम्मेदारियां बाहुस्न तरीके से अंजाम दी। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि पोलिंग ड्यूटी के बारे में पहले से मुकम्मल फहम कायम कर लिया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि तकसीम के दिन बैलेट बॉक्सों को ले जाना और पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद करीमनगर के इस्तकबालिया मरकज में उनके हवाले करना प्रेसाइडिंग अफसरान की जिम्मेदारी। किसी भी सूरत में पीओस को मशवरा दिया कि वो बैलेट पेपर्स और बैलेट बॉक्स अपनी निगरानी में अपने साथ रखें। इलेक्शन कमीशन के वाज़ा करदा क़वायद के मुताबिक वो अपनी जिम्मेदारियां बगैर किसी गलती के बाखूबी सर अंजाम थे और कहा कि वोटर्स और उम्मीदवारों के एजेंटों से मुख्तलिफ मसाइल पर शुकूक व शुबहात पैदा होने का खदशा है और उन्हें दूर करना पीओस की जिम्मेदारी। पोलिंग मुकम्मल होने के बाद रिकॉर्ड बुक में तफसीलात दर्ज करके रिपोर्ट तैयार करने की तजवीज़ दी। इस मौके पर मास्टर ट्रेनर्स हनमंडू ने पोलिंग डे के मौके पर पीओस और एपीओस की जानिब से की जाने वाली एहतियाती तदाबीर और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए अंजाम दी जाने वाली जिम्मेदारियों के बारे में तफसीली जानकारी दी। इस मौके पर निजामाबाद आरडीओ राजेंद्र कुमार, रेवेन्यू डिवीजन के तहत मुतल्लिका मंडलों के तहसीलदार, पीओस, एपीओस और दीगर ने तरबियती क्लासेस में हिस्सा लिया। ఎమ్మెల్యే ఆర్ ఎంపీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఎక్కువ ఉంటారు. బట్ వేరేస్ ఇక్కడ మీరు టీచర్స్ చూసుకుంటే మన ఎంటైర్ జిల్లాకి సమ్ 3500 ఓటర్సే ఉన్నారు. సో కాబట్టి మార్జిన్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటుంది. మళ్ళీ మీకు తెలిసి రౌండ్స్ అవుతాయి, అంటే ఫస్ట్ రౌండ్ కౌంటింగ్ అవుతుంది, అది 50% ఎవరికి రాకపోతే అగైన్ సెకండ్ రౌండ్ కౌంటింగ్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ పోల్డ్ అనేది చాలా క్రిటికల్గా ఉంటుంది. సో ఆ నంబర్స్ అవన్నీ కరెక్ట్గా మెన్షన్ చేయండి, ఎక్కడ కూడా ఏ మిస్టేక్ లేకుండా. అగైన్ మనకి బ్యాలెట్ బాక్స్ సీలింగ్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండాలి. సో అది మళ్ళీ మీరు ఇక్కడ తీసుకునేటప్పుడు అక్కడ రిసెప్షన్ సెంటర్లో ఆ క్యాండిడేట్స్ కూడా ఉంటారు. ఆ బ్యాలెట్ బాక్స్ సీలింగ్ కరెక్ట్గా లేదు, ఆ సమ్ థ్రెడ్ లూజ్గా ఉంది, సో అన్నెసరీ ఎలిగేషన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్, మీకు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో పోలింగ్ మెటీరియల్ ఇచ్చిన తర్వాత రిసెప్షన్ సెంటర్లో అగైన్ మీరు హ్యాండ్ అవుట్ చేసేంత వరకు మీదే రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో అంటే పోలింగ్ స్టేషన్కి ముందు రోజు వెళ్తారు. సో వెళ్ళినప్పుడు మీ కంట్రోల్గా బ్యాలెట్ పేపర్ ఓటింగ్. సో కాబట్టి కొన్నిసార్లు యాక్టివ్గా లాగిస్తారు, వాడు వెళ్ళి వన్స్ బటన్ నొక్కుతాడు, అది 7 సెకండ్స్ 10 సెకండ్స్ టైం పడుతుంది, టైం ఫిక్స్ ఉంటుంది. బట్ ఎయిదర్ టీచర్స్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి ఏమంటే ఈవెన్ 20 క్యాండిడేట్స్ 30 క్యాండిడేట్స్ ఉంటే సో దే కెన్ గివ్ లైక్ దేర్ ప్రిఫరెన్స్, అంటే ఓటర్ 1 to 20 మార్క్ చేయొచ్చు. సో కాబట్టి 1 to 20 మార్క్, కొంతమంది 1 to 3 మార్క్ చేయొచ్చు, కొంతమంది 1 to 20.
दिल्ली में बीजेपी की जीत पर निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद ने खुशी का इजहार किया और कहा कि बीजेपी उम्मीदवार असेंबली हलके से कामयाब हुए, जहां उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई। निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद ने दिल्ली में हुए असेंबली इंतखाबात पर बीजेपी पार्टी की जीत पर खुशी का इजहार किया। असेंबली हलके आर के पुरम और जंगपुरा से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल शर्मा और त्रिवेंद्र सिंह, जिनके लिए उन्होंने इंतखाबी मुहिम चलाई, वो इंतखाबात में कामयाब हुए और उन्हें दिल्ली में मुबारकबाद और एजाज से नवाजा गया। अरविंद ने कहा कि वो इस जीत को वज़ीर-ए-आज़म मोदी के नाम वक्फ कर रहे हैं। जंगपुर बीजेपी के उम्मीदवार त्रिवेंद्र सिंह ने अहम लीडर मनीष सिसोदिया को शिकस्त दी। जिला टास्क फोर्स पुलिस ने 25 कुंटल पीडीएस चावल को जब्त किया, जो गैर कानूनी तौर पर वर्नी मंडल मुंतकिल किया जा रहा था। तफसील देखते हैं। निजामाबाद इंचार्ज सीपी सिंधु शर्मा ने आईपीएस के हुक्म पर टास्क फोर्स एसीपी नागेंद्र चारी की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स के इंस्पेक्टर अंजैया और सीसीएस के एहलकारों ने वर्नी पुलिस स्टेशन के तहत मूसरा गांव में गैर कानूनी तौर पर जखीरा किए गए 25 कुंटल पीडीएस चावल को जब्त किया और कहा कि वर्नी पुलिस स्टेशन एसएचओ मजीद कार्रवाई कर रहे हैं। सऊदी अरब ने वीजा खवानीन में की तब्दीलियां, हिंदुस्तान समेत 14 मुमालिक पर पड़ेगा असर। सऊदी अरब ने हज 2025 के लिए अपनी वीजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीलियां मुतारिफ करवाई, जिनका बराह रास्त असर हिंदुस्तान समेत 14 मुमालिक पर पड़ेगा। सऊदी हुकाम ने इन नए क़वायद के तहत इन मुमालिक के शहरियों के लिए मल्टीपल एंट्री वीजा को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया है। अब इन शहरियों को सिर्फ सिंगल एंट्री वीजा हासिल करने की इजाजत होगी। ये फैसला गैर कानूनी तौर पर हज करने वालों को रोकने के लिए किया गया है, क्योंकि मल्टीपल एंट्री वीजा रखने वाले अफराद अक्सर बगैर इजाजत हज में शामिल हो जाते थे, जिसकी वजह से मक्के में शदीद हुजूम का सामना होता था। सऊदी हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद मक्के में हज के दौरान हुजूम को कंट्रोल करना और हुज्जाज को बेहतर सहूलियात फ्राहम करना है। इस तब्दीली का असर इन 14 मुमालिक पर पड़ेगा: हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मिस्र, अलजायर, मराकश, एथोपिया, इराक, अर्दन, नाइजीरिया, सूडान, तिवंस और यमन पर पड़ेगा। इन मुमालिक के शहरी अब सिर्फ 30 दिन के लिए काबिले अमल सिंगल एंट्री वीजा के लिए दरख्वास्त दाखिल कर सकेंगे। मल्टीपल एंट्री वीजा पर पाबंदी आर्जी तौर पर आयद की गई है, ताहम हज, उम्रा, सिफारती और रिहायशी वीज़ों पर ये पाबंदी लागू नहीं होगी। सऊदी हुकाम ने बताया कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा की वजह से कई अफराद गैर कानूनी तौर पर हज या काम में मसरूफ हो जाते थे, जिसकी वजह से इंतजामात में मुश्किलात पेश आती थी। हर साल लाखों मुसलमान हज के लिए मक्का आते हैं और सऊदी हुकूमत ने हर मुल्क के लिए मखसूस हज कोटा मुकर्रर किया है। गुज़िश्ता साल शदीद गर्मी के दौरान 1200 से ज़ायद हुज्जाज जाबक हुए थे, जिनमें बेशतर गैर मजाज शामिल थे। इस सानहे के बाद सऊदी हुकाम ने इस साल हज के दौरान मजीद सख्त इक़दाम करने का फैसला किया। हुकाम का कहना है कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा की मुअत्तली आर्जी, लेकिन इस पाबंदी की मुद्दत के बारे में कोई वाज़ेह ऐलान नहीं किया गया। माह रमजान मुबारक में देर रात तक कारोबार की इजाजत और शब बारात के मौके पर खुसूसी इंतजामात के लिए बोधन एमआईएम वफद की एसीपी बोधन से मुलाकात, वो तहरीरी नुमाइंदगी हवाले की और अफ्तार के वक्त पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनखीबी ना करने की गुजारिश। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल समी, खदीर, अत्थर, राशिद, अखिल, उमर, अलीम रजा मौजूद थे। इस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ख़ारिजीन और काउंसलर्स में आने वाले रमज़ान के ताल्लुक़ से एसीपी बोधन से जनाब अलहाज असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर तमाम मजलिस क़ायदीन ने एसीपी साहब से मुलाक़ात करते हुए जो रमज़ान में पब्लिक को जो सहूलत की ज़रूरत है, क्योंकि रात देर गए इबादत का मौका रहता है और होटलें और जो दुकानें खुले, कपड़ों की दुकान और फ्रूट की दुकानें जो चालू होती हैं, उसके ताल्लुक़ से नुमाइंदगी की हैं। तो एसीपी साहब ने तय किया कि मेरे सतह तक जो भी मदद की ज़रूरत है मैं करूँगा और गवर्नमेंट के भी इंस्ट्रक्शंस जब तक हमारे पास आ जाते हैं उसके बाद हम 1 महीना कोई कार्रवाई नहीं करेंगे
बल्कि जो मोटरसाइकिल के ऊपर जो चालाना दार हैं उसको भी मैं गौर करूँगा उसके ताल्लुक़ से, और जहाँ तक बेहतर हो सके इंतज़ाम करने की कोशिश करेंगे। और शब बारात के वक्त भी रात देर गए होटलें और खुले रखने के लिए हम अपील किए, तो ACP साहब ने उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया और हमें एक मेमोरेंडम पेश किए, जिसके लिए ACP साहब ने समझा के आइंदा साल से भी जहाँ पर जो चीज़ खामी रहेगी उसको दुरुस्त करते हुए बग़ैर तकलीफ के इस माह को हम गुजारने के वास्ते हम भरपूर ताउन देने का तयक़ुन दिया। हम ACP साहब का शुक्रगुज़ार हैं कि हम आइंदा भी जहाँ पर भी वतन में ऐसा कुछ मसले आएंगे आप लोगों के नॉलेज में लेके आएंगे और जब का जब वो मसले को सॉल्व करने की कोशिश करें। इस्लाम हमारी सबसे बड़ी शनाख्त है जिस पर हर मुसलमान को फख्र होना चाहिए। मिटपल्ली में सालाना जलसे से मौलाना अब्दुल खवी साहब का फिक्र अंगेज खिताब। शहर मिटपल्ली का 38 साला खदीम इदारा मदरसा अरबिया तजवीदुल कुरान के सालाना इजलास से खिताब करते हुए उलमा इकराम ने इदारे की खिदमत को सराहा। नेस इस साल तकमील हिफ्ज़ करने वाले 2 तलबा को इनके सरपरस्तों और एहसाब व अक़रबा को मुबारकबाद देते हुए मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा इमाम व खतीब मस्जिद इस्लामिया व खादिम दारुल उलूम सैदिया मालापल्ली निज़ामाबाद ने कहा कि कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा तो अल्लाह ने ले लिया है, मगर कुरान मजीद के हुकूक अदा करना हम मुसलमानों की जिम्मेदारी है। एक हक कुरान मजीद का तिलावत करना है जिससे आज अक्सर वो बेशतर मुसलमान गाफिल नजर आते हैं। हमें अपनी इस गफलत को दूर करने की ज़रूरत है, वरना जिल्लत व रुसवाई से हमें कोई नहीं बचा सकता। मेहमान खुसूसी मौलाना अब्दुल खवी साहब मदरसाउल आली नासिम इदारा अशरफुल उलूम हैदराबाद ने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी निस्बत इस्लाम की है। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह के पसंदीदा दीन को मानने वाले। दुनिया की सबसे बड़ी पहचान और शनाख्त हमारे लिए हमारा दीन और मजहब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसूद दीन मुजस्सिम है। आपकी विलादत से लेकर पर्दा फरमाने तक का हर अमल, हर खौफ अदाए दीन की चलती फिरती तस्वीर और कुरान मजीद दीन इस्लाम। यही वो कुरान है जो हमारी दुनियावी वो आखिरी कामयाबी का ज़ामिन, जिसको अल्लाह ने मौज़त और शिफा फरमाया है। दिलों की बहार, आंखों की बसीरत और क़ल्ब का नूर फरमाया गया। दुनिया के तमाम गमूम व हमूम का मदावा कुरान मजीद है। इसकी अजमत व तक़द्दुस का दिल से पास व लिहाज करना चाहिए। मौलाना मुफ्ती आमिर क़ासमी उस्ताद दारुल उलूम रहमानिया ने मदारिस के किरदार पर बात करते हुए कहा कि इन मदारिस दुनिया को मोहब्बत की निगाह से देखना चाहिए। इनका माली ताउन करके फलने फूलने के मौक़े फराहम करना चाहिए। ये दीनी मदारिस इस्लामी अक़दार के मुहाफ़िज़ है। मौलाना अबरारुल हसन साहब रहमानी ने अपील की कि कुरान मजीद को बकसरत तिलावत करने वाले बने, इस असीम नेमत की कदर करें। मदारिस इस्लामिया इस्लामी पावर हाउस है जहाँ से उल्मा, हुफ़्फ़ाज़, मसाजिद के लिए आइमा और कौम व मिल्लत की रहनुमाई करने वाले सुपुत तैयार होते हैं। नाज़िम मदरसा मौलाना अब्दुल हमीद क़ासमी क़ाज़ी शहर ने तमाम मेहमानों और मुखलिस मुआविनीन मदरसे का शुक्रिया अदा करते बताया कि लॉकडाउन के बाद इस मदरसे की निशात सानिया हुई। कारी महबूब साहब व दीगर असातिज़ा इकराम इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान मेहनत करें। शहरियाने मिटपल्ली का ताउन मदरसे को हासिल, जिसके नतीजे 2 तलबा हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। कोई भी चीज दिखे उसके पीछे कोई छुपा हुआ है, उस छुपे हुए को हम देख लें, और वो है हमारा मौला, हमारा मालिक, हमारा महबूब। हर चीज के पीछे वो छुपा हुआ है, हर चीज उसकी कुदरत का मजहर है, हर चीज उसकी कुदरत का इजहार है। फी कुल्ली शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। हर चीज उसकी कुदरत की निशानी और उसकी वहदानियत का ऐलान है और उसकी दावत। हर चीज माल दौलत के जुमरे में टिल टाप कहलाते हैं। सबसे ऊपर के 10, 5, 2 सबसे बड़ा माल हेज है इस दौलत के मुकाबले में कि जिसके पास ईमान की नेमत है और जिसके पास कुरान की नेमत है। कुछ नहीं, एलोनिस्ट के पास क्या है? कुछ भी नहीं है। वो कौड़ियां जिसे वो लेके भी नहीं जा, फिशन को खत्म नहीं कर सकती, क्या है उसके पास? लेकिन पूरी मीडिया में उसका नाम है,
क्या है अंबानी के पास, अडानी के पास, हमारे मुल्क के एतबार से टॉपर्स हैं, सबसे बड़े मालदार लोग कहलाते हैं। क्या इनकी ये दौलतें, इनकी ये प्रॉपर्टी, इनकी ये मकानात, इनकी कारें, इनकी गाड़ियां इनके दिल की बेसुकूनी को खत्म कर सकती? निजामाबाद जिले के अरगिटला मंडल में अचानक चौराहे पर मगरमच्छ दिखाई देने पर अवाम खौफजदा। महकमा जंगलात के अहलकारों ने मगरमच्छ को श्री राम सागर प्रोजेक्ट मुंतकिल किया। निजामाबाद जिले के अरगिटला मंडल तलारामपुर गांव में एक मगरमच्छ गांव के चौराहे पर आ गया। सुबह सवेरे मगरमच्छ के दिखाई देने पर गांव की आवाम खौफजदा हो गई। गांव के नौजवानों ने फौरी तौर पर महकमा जंगलात के एहलकारों को इत्तला दी और महकमा जंगलात के एहलकार मौके पर पहुंच गए। महकमा जंगलात के एहलकारों ने नौजवानों के साथ मिलकर मगरमच्छ को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर पकड़ लिया और उसे श्री राम सागर प्रोजेक्ट पर ले गए। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर रविंदर ने बताया कि एक मगरमच्छ तकरीबन 6 साल तक जिंदा रहता है। इख्तिताम से कबल नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। एमएलसी इंतखाबात के पेश नजर पीओस एंड एपीओस के लिए तरबेती क्लासेस का इनेकाद। जिला कलेक्टर राजीव कांदियल मंतू जारी की हिदायतें। इस्लाम मुसलमानों की सबसे बड़ी शान जिस पर हर मुसलमान को फख्र होना चाहिए। सालाना जलसे से मौलाना अब्दुल कवी का ईमान को गर्मा देने वाला खिताब। सऊदी हुकूमत ने हज वीजा में जारी की तब्दीली। हिंदुस्तान समेत दीगर 14 मुमालिक पर होगा असर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ भी मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे प्रवास टीवी। अब तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।